زیارت کراتے ہیں اس قرآن مجید کی. آپ کو یہ قرآن مجید کی آپ زیارت کر رہے ہیں جو سرکار وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اس کو, اور آپ یہ تحریر دیکھ سکتے ہیں. 100 سال سے اوپر کی تحریر ہے آپ کی, اور جو میں آپ کو زیارت کرا رہا ہوں. آج آپ جناب مختار اشرف صاحب پہلی مرتبہ خانقاہ وامقیہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آستانہ وامقیہ میں حاضری ہو رہی ہے, اور صاحب مزار سید فدا علی المعروف بہی وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار شریف ہے, اور ان کے صاحبزادے جانشین پہلے سجادہ حضرت سید ذل علی المعروف بہی نشاط میاں رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں بزرگ کے مزارات ہیں. اور یہ خانقاہ وامقیہ در اصل بریلی شریف میں خانقاہ اشرفیہ کا قیام ہوا. سلسلہ اشرفیہ کے مجدد ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب بریلی شریف تشریف لائے, اور آپ کے حکم پر آپ کے خلیفہ جن کو حضور اشرفی میاں نے اپنی زبان اشرف سے فرمایا ہے لوگوں سید وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ یہ میرا شہباز ہے, اس پر ہم ابھی گفتگو کریں گے. تو ان کے حکم پر ہی اشرفی میاں کے 1907 میں یہ خانقاہ اشرفیہ وامق میاں کے ان کی بنا پر قیام میں عمل میں آئی, اور اس کے بعد سے الحمدللہ سلسلہ وامقیہ کا ترقی کا جو راستہ ہے وہ سب کچھ کچوچھا کی دین ہے. اور آپ کے والد سید مردان علی شاہ صاحب جو حضرت وامق میاں کے والد ماجد ہیں, ان کی تربیت تعلیم اور جو بھی علمی تعلق اس خانقاہ کا ہے, تو بظاہر حضرت وامق میاں کے 2 استاد رہے, ایک اعلیٰ حضرت اشرفی میاں پیر و مرشد, اور دوسرے آپ کے والد گرامی سید مردان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کو علامہ ڈاکٹر محمود حسین بریلی کالج ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ عربی پرشین انہوں نے لکھا بھی ہے کہ وامق میں رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے صرف اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ آپ کے اساتذہ میں صرف 2 استاد رہے, ایک آپ کے والد سید مردان علی شاہ صاحب اور ایک حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریلی شریف میں اس وقت ہم موجود ہیں اور خانقاہ وامقیہ بریلی شریف میں موجود ہے, اور اس خانقاہ وامقیہ کو کچوچا شریف سے بڑی خاص اور گہری نسبت حاصل ہے. ہم شبیہ غوث جیلان سرکار سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ اور مرید ہیں سرکار وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ. انہی کی خانقاہ میں ہم موجود ہیں, اور خانقاہ وامقیہ کے صاحب سجادہ حضرت اسلم میاں وامقی صاحب آپ ہمارے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں. میاں سب سے پہلے تو استقبال ہے آپ کا. یہ قرآن شریف ہمارے پاس سامنے موجود ہے اس وقت, کیونکہ آپ نے ذکر کیا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی تعلق سے, حضرت سید فدا علی وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ تاریخ روہیل کھنڈ میں وہ عظیم بزرگ ہیں جو صاحب دیوان ایسے ہیں کہ تمام مشائخ کے پاس مجموعہ دیوان ہے. حضرت وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ خود صاحب دیوان الف سے یہ تک کی ردیف پر آپ نے نعتیہ دیوان کہا ہے, جس کا تاریخی نام ہے توصیف سرکار عرب. 1339 ہجری اور 560 صفحات پر وہ دیوان الحمدللہ 106 سال کے بعد ابھی اس ماہ میں ہوا ہے, جس کی رسم اجرا مدینہ منورہ اور کچوچا مقدسہ میں ہو چکی ہے. اور آپ جس اس خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس خانقاہ کا انتخاب 1907 میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے خود فرمایا, اور میرے جد کریم سید وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ پیر کی شیخ طریقت کی تلاش میں تھے, حقیقت کی تلاش میں تھے, چونکہ آپ نے 13 سال تک ترک حیوانات کا عمل کیا. حضرت وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک بارگاہ مدینہ میں پیش کرتے تھے, اس کے بعد کچھ چائے وغیرہ کو لیتے تھے. آپ خود فرماتے ہیں اسی نے دولت دارین لوٹ لی وامق, جو پوکر ہو گیا ان پر فدا ہو درود و سلام. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف میں تشریف لائے ہوئے تھے. حضرت وامق میاں رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو آپ ملاقات کے لیے گئے, اور خود آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ پیارے میاں بسکٹ والے کے یہاں بیٹھے تھے اور تبلیغ فرما رہے تھے.
लोगों को रुश्द और हिदायत दे रहे थे। मैंने खामोशी के साथ पीछे जाकर बैठ गया और मैंने कोई तारुफ अपना नहीं कराया। इसी आन में चंद लम्हात के बाद आला हज़रत अशरफी मियाँ, जो यकीनन मुजद्दिद सिलसिला अशरफिया भी हैं और उस वक्त के तमाम हज़रतों में आला हज़रत जो कहे जाते थे, वो अशरफी मियाँ का हक़ था। और कहा, और लोगों ने भी कहा, चाहे बरेली हो, महरैरा हो, दीगर खानकाएँ हैं, अहले सुन्नत ने उस ज़माने ही में आला हज़रत अशरफी मियाँ को कहा है। तो हज़रत वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं खामोश होकर बैठा हुआ था। चंद लम्हात के बाद हुज़ूर अशरफी मियाँ फरमाते हैं, क्या इस महफ़िल में कोई रज़्ज़ाक़ी सादात है? वामिक़ मियाँ फरमाते हैं, मैं खामोश रहा, मैंने कोई तारुफ भी नहीं कराया था और बताया भी नहीं था, लोगों को भी नहीं बताया था, मैं खामोश बैठा रहा। फिर आपने गुफ्तगू शुरू करी और फिर कुछ देर के बाद आला हज़रत अशरफी मियाँ फरमाते हैं कि भाई इसमें महफ़िल में कोई रज़्ज़ाक़ी है, जीलानी है? वामिक़ मियाँ फरमाते हैं, मैं खामोश रहा। लेकिन तीसरी मरतबा कुछ देर के बाद जब आपने कुछ अपने मिजाज में कहा कि मैं पूछ रहा हूँ, बताता कोई नहीं कौन है, तो हज़रत वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और होने के बाद आपने अर्ज़ किया, हुज़ूर मैं ही रज़्ज़ाक़ी और जिलानी हूँ। यहाँ रज़्ज़ाक़ी जिलानी से मुराद सरकार के गौसे आज़म के साहबजादे हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद से वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का 22वां रिश्ता है। तो ये खानक़ाह सादात की बरेली शरीफ में वाहिद है जो सरकार गौसे आज़म की निस्बत से 22वीं नस्ब के एतबार से है। और इसका ताल्लुक़ अशरफी मियाँ से ऐसे हुआ कि हज़रत अशरफी मियाँ को जब आपने बताया तो आपने फरमाया, आगे तशरीफ़ लाओ। वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं हाज़िर हुआ, आपने बैत फरमाया और बैत फरमाने के बाद उसी वक्त मुझे खिलाफत और इजाज़त अता फरमाई और इरशाद फरमाया, ए लोगो गवाह हो जाओ, ये मेरा शाहबाज है। मैं समझता हूँ कि खानवादा अशरफिया से सिलसिला अशरफिया में शाहबाज का तखल्लुस अगर किसी को हासिल है तो मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ में हुज़ूर वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह को है। अब मैं आपको जो मुख्तार साहब दिखाने जा रहा हूँ, ये बरेली शरीफ में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के बाद दूसरी शख्सियत हैं वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपने हाथ से पूरा कुरान मजीद लिखा है और उसका तर्जुमा किया है, उसकी तफसीर लिखी है, हाशिया लिखा है। और ये उनका तकरीबन 100 साल पुराना कलमी नुस्खा यहाँ मौजूद है और जिसकी मैं आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खानक़ाह वामिक़िया की तामीरी तहरीरी जो काम इस वक्त तेज़ी से चल रहे हैं, अल्लाह उन्हें पाए तकमील तक पहुँचाए। और आप मुख्तार साहब जो तशरीफ़ लाए हैं, खानवादा सिलसिला वामिक़िया आपका खैर मक़दम करता है और दुआ करता है कि अल्लाह ताला आप पर हमेशा फैज़ान मखदूम अशरफ व दीगर औलिया इकराम के फैज़ान से आपको माला माल फरमाए, क्योंकि आप एक दीनदार और खानकाही मामलात में बेपनाह खिदमतें कर रहे हैं। कभी आप अजमेर नज़र आते हैं, कभी आप कलियर नज़र आते हैं, कभी आप मुजद्दिद पाक की बारगाह में नज़र आते हैं, अभी आप बरेली शरीफ आए हुए हैं। आपने खानकाह शराफतिया में भी हाज़िरी दी और हज़रत शाह नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो मकबूल बारगाह अहले बैत हैं, मकबूल बारगाह सूफिया गौसे आज़म गरीब नवाज़ हैं, उनकी बारगाह में भी आप गए हैं। और आज आपका खैर मक़दम खानक़ाह वामिक़िया इसलिए करते हैं कि आपका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ खानवादा अशरफिया से यूँ सरकार कलां, जिनके लिए बरेली ने ये कहा है, सदाएँ दे रही है बरेली की ज़मीं ये अब तक, कचौचा में इमामुल औलिया मुख्तार अशरफ हैं। इसलिए हम आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस अंदाज़ में जिसमें वामिक़ मियाँ ने फरमाया, नज़र पौते ही अल्लाहू मुँह से निकले, नज़र पौते ही अल्लाहू मुँह से निकले, वो चेहरा है चेहरा अशरफी मियाँ का। तो बहुत अहम बातें हज़रत असलम मियाँ वामकी साहब ने इरशाद फरमाई खानकाह वामकिया के मुख्तसर से तारुफ़ के हवाले से, और सरकार आला हज़रत अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान को इस खानकाह से क्या निस्बत है और क्या फ़ैज़ यहाँ तक पहुँचाया, अशरफ़ी मियाँ अलैहि रहमा ने बहुत तफसील के साथ में बताया। और साथ ही बड़ी ख़ास और अहम बात ये कि शहनशाह बगदाद पीर पीरा हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं और ये खानकाह वामकिया इकलौती और मुनफरिद खानकाह है इस बरेली
शरीफ में। और दूसरा ये कि हज़रत सरकार सैयद शाह अली हुसैन आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ ख़ुद सरकार बगदाद की औलाद में से हैं, तो वो भी हसनी हुसैनी सैयद हैं और ये भी हसनी हुसैनी सादात हैं। तो ये भी एक बड़ी ख़ास और गहरी निस्बत है। कुरान मजीद की ज़ियारत हम आपको करा रहे हैं। जो कुछ हज़रत असलम मियाँ वामकी साहब ने मेरे हवाले से इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अल्फाज़ को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। अब ये कुरान मजीद की आपको ज़ियारत हो रही है। हज़रत वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात ज़ाहिरी में आखिरी उम्र में ख़ुद अपने हाथ से कुरान मजीद लिखा, अपना तर्जुमा किया, अपनी तफसीर की, और ये कलमी नुस्खा जो आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दुआ कीजिए कि बहुत से जल्द उम्मत मुस्तफ़ा के मंजर आम पर आ जाए। और इसको तकरीबन ज़िम्मेदार हिंदुस्तान के उलमा मशाइख देख भी चुके हैं, और इस पर अल्लामा डॉक्टर महमूद हुसैन वामिक़ी साहब जो प्रोफेसर हैं बरेली कॉलेज पर, और वो एक ख़ासियत ये भी रखते हैं कि हिंदुस्तान में अरबी में सबसे पहले आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी पे जो PhD की है वो वामिक़ी डॉक्टर महमूद साहब ने की है। बड़ी ख़ास बात आपने इरशाद फरमाई। तो अब आइए ज़ियारत कराते हैं उस कुरान मजीद की। आपको ये कुरान मजीद की आप ज़ियारत कर रहे हैं जो सरकार वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से लिखा है इसको, और आप ये तहरीर देख सकते 100 हैं। साल से ऊपर की तहरीर है आपकी, और जो मैं आपको ज़ियारत करा रहा हूँ ये आपके हाथ का कलमी नुस्खा है, और इस पर हाशिया भी है, तफसीर भी है। क्योंकि बहुत से बुज़ुर्गों ने तर्जुमा किया, तफसीर नहीं की, लेकिन वामिक़ मियाँ ने तर्जुमा भी किया है। देखिए हाशिया भी है, तफसीर भी है, तर्जुमा भी है। बस इंशाअल्लाह करीब ये भी इस पर काम होगा, क्योंकि दीवान तौसीफ़ सरकार अरब मंजर आम पर हिंदी उर्दू ज़बान दोनों में आ चुका है। अब एक किताब और आ रही है, हयात सैयदुल मशाइख़ वामिक़ मियाँ बरेलवी, उसमें फिर तमाम तारुफ भी है। और इस वक्त जो आपके हाथों में ज़ियारत के लिए है वो कुरान मजीद अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है, जिसको हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला फैज़ान कुरान और फैज़ान आले रसूल से माला माल फरमाए। हो गई पार वहीं कश्ती सियाँ वामिक़, जब सहारे के लिए आ गई रहमत उनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़बरदस्त शायर भी थे, और उन्हीं की शायरी का दीवान तौसीफ़ सरकार अरब मंजर आम पर आ भी चुका है। और हज़रत असलम मियाँ वामकी साहब ने हज़रत वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के दीवान को उर्दू में भी मंजर आम पर ले आए हैं, और हिंदी में भी अब ये मंजर आम पर आ चुका है। और आप हज़रत वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के जो कलाम हैं उनको पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा मुख्तसर सा तारुफ है सरकार वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से और खानकाह वामकिया के हवाले से। बरेली शरीफ बुज़ुर्गों का शहर है, सूफिया का शहर है, और यहाँ भी बहुत सारे औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं, और उन्हीं में एक बड़ी अहम खानकाह वामकिया है। आप जब भी बरेली आएँ तो हज़रत वामिक़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी ज़रूर हाज़िरी दें, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।